nature man spirit complex. The important one. Nature man spirit complex is the result of the study done by Dr. L.P. Vidyarthi on a vulnerable tribe of Bihar called as Maler, right? Maler or Mal Pahari. It is called as Mal Pahari also. Either it is Mal Pahari or Maler, right? Mal, air. So what is nature man spirit complex? So nature man spirit complex is just an extension of the concept of sacred complex, right? In sacred complex, the whole sacred complex is based on the trichotomy of 3 acts, that is sacred geography, sacred performances and sacred specialist. The same thing is it, a sacred geography, a sacred specialist and sacred performances, right? So theme is same, sacred complex. Now their sacred complex means a region or a center or an area which is termed or called as sacred due to the center of belief, a junction of literary tradition and representation of or a symbol of Indian civilization. Here nature man spirit complex that defined the life of a tribe, how tribe live in a certain area and how that area becomes sacred for that particular tribe, right? Second, it is an extension of culture ecology, right? Concept given by Julian Stewart, right? So nature actually denote to the environmental part, right? Man denotes the societal part, right? And spirit denotes the and belief part, right? Or called as the supernatural part. Clear? Interaction of man with the environment give rise to culture, because it is said that culture is man-made part of environment. So here culture is due to the nature. And what nature provide a human? Of course, the basis of economy, right? Because nature is productive and human get the production through nature, because we are dealing with the tribe which is a tribe which is hunter and gatherer and dependent on the temporary agriculture in terms of shifting cultivation, and that shifting cultivation called as khallu, right? So here society is in center, right? Society means family, marriage, kinship. A man is completely dependent on nature in terms of economy, right? So nature is the part which fulfill the basic need of human being in terms of
Why culture? If Malinowski, in the word of Malinowski, why culture? सर फोड़ दूंगा. Psychological need. Psychology इधर आ गई है, right? Actually, culture is there to satisfy the need of individual, right? सीधा psycho इधर है, right? So in this form, nature man spirit complex actually define culture in terms of functional aspect. Two aspect, functional. So here it is the materialistic need, here psychological need, right? So society is associated with nature as well as spirit wise. So because nature is there to fulfill the materialistic need, whereas spirits are there to fulfill psychological need. And this is again a triology, right? Without which survival is not possible for the tribe of Malir, right? So one side nature, one side spirit. Nature provide the economical part. So these people are very much adaptive to a specific nature, right? Because on the basis of nature, these people created or formed a culture. So that culture is very much adaptive to the surrounding environment. If environment change, what will change? Clear? First thing. Second, this particular area of culture is surrounded by their supernatural spirits. And the head of these spirit is called as Jagat Gosai. So Jagat Gosai works as a bridge between spirits and human, right? And due to that Jagat Gosai, there are two types of spirits, malevolent and benevolent. Benevolent help them, malevolents are there, but Jagat Gosai and good spirits are there to protect them from bad spirits. And those spirits, they live in that particular area. So the inhabitant Malers is actually very much protected by the spirit, and that is very much adaptive to the environment, particular nature. Now, why this study is relevant? It is relevant in this term that in the name of development, tribal displacement happens. And in the name of displacement, what they do, our rehabilitation program focus men only, right? Men only. But here, man cannot survive without this triology, right? If a man is displaced from here, what he will lose? Psychological need and the culture, completely individual need. So when a person displaced from here to other place, this person will feel insecure, deserted, frustrated, right? And compensation will not work here because they compensate a human only, right? So, in the words of Vidyarthi, when a tribe is displaced from a place, rehabilitation program should consider this triology. On the basis of the triology, rehabilitation planning should be planned, executed. For that, they require proper anthropologist. That shows the need of applied anthropology. And work done by Lalita Prasad Vidyarthi is called as action anthropology. Because the sui motu process, he went to the tribe not by the effort of government. He went there by its own sui motu thing, right? And then he approached to a solution. Okay, why after displacement these tribes does not survive properly? Why they become frustrated? Why money cannot compensate? He worked on that and then he found
Actually, it is not about the human, it is just about the triology, right? So for proper rehabilitation plan, this triology should be considered. So this is called the relevancy of nature man spirit complex, and this is still relevant when any developmental plan happens in the tribal region. Say a new development plan has already planned by the government in Andaman and Nicobar. If displacement happens, they should consider this triology, right? बस यही ध्यान रखने की बात. अब कर रहे हैं. But nowadays system has been changed. People are no more interested in shifting cultivation, right? Now they know the value of money, right? Now money in is so many things because they know the value of money now. Before that हमने बात की थी, what money is for the west, kinship is for the rest. So अब सिस्टम चेंज हो रहे हैं, कंपनसेट हो रहा है, नई जनरेशन जान रही है. बट इंपॉर्टेंटली एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन 1961-62 इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट because newly independent and the focus of Indian government was on the developmental plans, dams, right, minings, projects, railways, और ये सब जंगलों में से होकर जाते थे, पहाड़ों में से होकर जाते थे. These people were there. तो ये उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्शन प्लान था, एन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी प्लान विच शुड बी अप्लाइड इन ए प्रॉपर वे. उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी से परामर्श लिया गया था कि भाई क्या करना चाहिए. एंड द सेम थिंग कि उसकी नीड किसने बताई थी कि एंथ्रोपोलॉजी रिक्रूट होने चाहिए. एक और एंथ्रोपोलॉजी ने बताई थी, किन्होंने कहा था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुड बी रिक्रूटेड फॉर द इन द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स, इन द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन. डी.एन. मजूमदार सर, राइट, उन्होंने कहा था. इन्होंने एक्शन की बात की थी, उन्होंने अप्लाइड की बात की थी. तो ये है नेचर मेन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. अब राइट डाउन दिस. 20 नंबर और 10 नंबर दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं नेचर मेन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट. क्वेश्चन आया था, क्रिटिकली डिस्कस द रिलेवेंसी ऑफ नेचर मेन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स in terms of environment. Very much because एक बात ध्यान रखना, for the tribal resources, उनकी इकोनॉमी क्या किस पे बिलीव करती है. हमने सबस्टेंटिव इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स पढ़े थे. मैं फीचर्स की नहीं, सब्सटेंट इकोनॉमी और फॉर्मलिस्ट इकोनॉमी के बीच के डिफरेंस को आपसे पूछ रहा हूं. सबस्टेंटिव इकोनॉमी के फीचर्स, एक तो मैंने ये बताया था, व्हाट मनी इज फॉर द वेस्ट इज किंसी फॉर द रेस्ट. दूसरा क्या था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमाइजेशन, नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैक्सिमाइजेशन वाज formalist and optimization of this. So why it is called that, why this complex relevant, because this tribes make optimum use of nature, right, not the maximum utilization of nature. They live with the nature, they nurture the nature, right. So nature or environment is not there to exploit it, because these are hunting and food gatherers, and that you know can 99% economy of human was based on hunting and food gathering. Only 1% तो अब हुआ है. And the most important thing, hunting and food gathering is actually nature friendly, where industry and agriculture is exploitatory in nature, right, because it works against the nature. So hunting, food gathering was always favored nature because they were the food gatherers, right, hunters and gatherers. तो एक इकोसिस्टम चल रहा था. वो शेर का शिकार करके कभी खाते नहीं थे, गौर किया होगा तुमने. वो हर्बिवोरस का शिकार करते थे. वही शिकार जो कार्निवोरस करते हैं, सेम वही कर रहे थे. वो कभी कार्नी का शिकार नहीं करते थे. कार्निवोरस आर नॉट टू ईट, शेर खाने के लिए नहीं होता. बट अब ट्रेंड चेंज हो गया.
आप नॉर्थ में लोग कुत्तों का शिकार कर रहे हैं, स्नेक का कर, दे आर नॉट टू ईट, ईटिंग नहीं कर सकते, वो ईट के लिए बने ही नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एंजाइम है दे आर नॉट सुटेबल फॉर आर स्टोमक, क्योंकि वो कार्नी है, तो उनके अंदर के एंजाइम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, जनरेट करने के लिए नहीं है। और कार्नी भी कभी कार्नी को मार के नहीं खाता, फाड़ के फेंक देते हैं, आती है, कार्नी भी हर्बी का शिकार करता है, ये सिस्टम है। आप खाने का देख लो, कोई भी हर्बी का मुझे बता दो, किसी भी ट्राइब में उन्होंने कार्निवोर को रखा हो तो खाने के लिए, इट मे बी एलिफेंट ऑल्सो, बट हर्बी, एलिफेंट का शिकार हो रहा है, जो सूअर का शिकार हो रहा है, वाइल्ड बोर है, और उसके अलावा आपके हिरन है, डियर्स है, राइट, उसके बाद में आपका कैटल्स है, तो उनमें से कॉर्नी कौन सा है? सियार, सिंघा, मतलब कहते हैं क्या उसको, कहते हैं अपने, वो तो सब कार्नी नहीं है, हर्बी है ना। मान ले वाइल्ड डॉग्स है, फॉक्सेज है, राइट, उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ हाइना है, तो इनको कोई कल्चर नहीं खाती है, बट एक को छोड़ के, वो है चाइना। इसी वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में इनॉर्मस वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो इको फ्रेंडली नहीं होते, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये लोग क्या है, डिस्ट्रक्टिव नेचर के लोग हैं, दे आर देयर एज स्कैवेंजर्स ऑफ द नेचर, उनको वो खाने हैं फूड चेन। इसीलिए ध्यान रखना कि नेचर में कभी भी कोई भी ट्राइब है इस तरह का शिकार नहीं करती, उनका शिकार बहुत अलग होता है। भूख में कर ले पता नहीं, बट कभी भी कार्नी के पीछे नहीं भागेंगे। सो वी से ना दैट, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है, व्हाई नेचर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स इज रिलेवेंट फॉर इन टर्म्स ऑफ environment friendly. Yes, it is, because for a tribe nature is their home. Nature basically provides them what? First, security, क्योंकि हमने बात की टोटेमिज्म में, each and every tribe has a totem in terms of either any animal or a plant. Second, according to tribes, these totem or tree are responsible for the fertility. अरुंटा ट्राइब, कौन बोला? जेम्स फ्रेजर बोला कि वहां की औरतें मानती है कि ट्री जो है वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो एक्चुअली दे वर्शिप नेचर, राइट, दे बिलीव इन नेचर, दे प्रोटेक्ट नेचर। अभी जितने भी जंगल बचे हैं ना, वो ट्राइब्स की वजह से बचे हुए हैं। सो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स, This works as a sacred complex, right, which preserves traditions, beliefs, morals, right, all things. जैसे वहां पे उनका बिलीफ जो है वो sacred फॉर्म पे है, इनका बिलीफ किस पे है? नेचर पे है, राइट, क्योंकि यहां पे नेचर जो है एक sacred ज्योग्राफी है, मैन जो है वो sacred स्पेशलिस्ट है, और जो स्पिरिट है उनके लिए sacred परफॉर्मेंसेज है। So why it is very much important for the tribe? और चूंकि नेचर उनके लिए सेक्रेड ज्योग्राफी है, so they preserve nature. ट्राइब हमेशा नेचर को प्रिजर्व करेगा बिकॉज देयर कल्चर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नेचर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सो दे प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। वो एक पेड़ काट के घर बनाएंगे, 4 पेड़ लगा जाएंगे, ये उनकी बात है। सो राइट डाउन नेचर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स। The concept was given by Dr. L.P. Vidyarthi on the basis of his study on Malay tribe. और ब्रैकेट में कहना पहाड़ी माल, इनके लिए एक वर्ड आता है देखो, दीज आर कॉल्ड एज पहाड़ी माल।
क्लियर? सो पहाड़ी माल. The text on this study is Maler. आगे Maler is nature man spirit complex. Right? Maler tribe is inhabitant of Bihar region and it is a primitive tribe based on hunting and food gathering. The tribe exercise shifting cultivation called as खल्लू खेती. जिस चीज को हमारे यहाँ पे खुला कहते हैं वहां पर खल्लू बोलते हैं. मतलब ओपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, नॉट बाउंडेड विद द फील्ड. खुला खेती, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? खल्लू खेती. खल्लू मतलब इट इज नॉट बाउंडेड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड. कोई लैंड या फील्ड पे बाउंडेड नहीं है. जहां पे जगह मिलेगी वहां पे कर लेंगे, 2 साल करेंगे, फिर खुला छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे. The tribe has belief on spirits i.e. supernatural spirits presided by गोसाई और जगत गोसाई. राइट? तो हमने माले ट्राइब का थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया. माले ट्राइब क्या है? सबसे पहले क्या स्टडी किसने की है? विद्यार्थी ने. सेकंड क्या है? माले ट्राइब क्या है. अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की. राइट? विद्यार्थी conceptualized the concept of sacred complex in nature man spirit complex. Where nature represents sacred geography, man represents sacred specialists, and spirit sacred
performances. Sacred specialist. तुम कल आए नहीं थे ना? मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें बताता हूं, सुनना एक बार। देखो, विद्यार्थी ने कंसेप्ट दिया था सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का, जिसमें वो कहता है कि इंडिया में इनॉर्मस ऐसे प्लेसेज है जो काफी सेक्रेड इन नेचर में, जैसे हमारी जो लार्ज हिंदू सोसाइटी है या फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी है या तांत्रिक सोसाइटी है, इनके कई जगह पिलग्रिम सेंटर्स बने हुए, राइट। और पिलग्रिमेज इनके लिए जीवन के बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक है, राइट। तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा। सो हर एक, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैसे अगर तुम्हें याद हो अशोका ने क्या कहा था अपने एडिक्ट में कि आज के बाद मैं सामान्य यात्राएं छोड़ के और क्या करूंगा, धम्म यात्रा, राइट। तो अशोक के टाइम में भी यात्राएं, पिलग्रिमेज एक बहुत बड़ा चीज माना जाता था। क्लियर? सो जब इसने इन तीर्थ स्थानों का अध्ययन किया तो इसने ये पाया कि जो तीर्थ स्थान है, ये जो पिलग्रिम सेंटर है, एक्चुअली ये अलग अलग रीजन से आए हुए लोगों का, जिनकी अपनी अपनी कल्चर है, उनका एक कॉन्टेक्ट एरिया बनता है, राइट। वहां अलग अलग लगे से लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ चीजें संचालित होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पिलग्रिम सेंटर्स है ये एक्चुअली ग्रेट ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? जैसे बड़े बड़े मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर है काशी में, गया में जो बौद्ध गया जो गया है वो हिंदुओं के पिंडदान की सबसे बड़ी जगह है मोक्ष के लिए। तो इसने कहा कि ये जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है इसमें ग्रेट ट्रेडिशन, जो अलग अलग ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं वो यहाँ आते हैं, उनका लिटिल ट्रेडिशन, ये ग्रेट ट्रेडिशन। तो ये जो सेंटर्स है ये ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के जंक्शन का काम करते हैं, कल्चर इंटरेक्शन का काम करते हैं, इसीलिए इसको उसने नाम दिया सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। असल में ये तीर्थ यात्रा स्थान है। इस हिसाब से पूरा भारत में इतने ज्यादा तीर्थ है कि इसको पूरा एक सेक्रेड एरिया बन जाता है। अब इसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे अध्ययन किया, जैसे जैसे विद्यार्थी ने किया गया पे, राइट। नारायण ने किस पे किया? नारायण ने किस पे किया? देवगढ़, वेस्ट बंगाल, राइट। झा ने किस पे किया? माखन झा ने, माखन झा ने किया जनकपुरी और रतननगर और पुरी पे। सरस्वती ने किस पे किया? ये सब ने अलग सेंटर लिए। सरस्वती ने लिया, सबसे पहले लिया नेमिषारण्य, यूपी में एक जगह नेमिषारण्य, उसको लिया। उसके बाद उसने किस पे अध्ययन किया? दूसरा उसने अध्ययन किया काशी पे, राइट। नारायण रेड्डी ने अध्ययन किया तिरुपति बालाजी पे, तिरुपति बालाजी पे कर रहा है। तो ये अलग अलग लोग अध्ययन कर रहे हैं और फाइनली इन्होंने ये क्या कहा कि ये जितने भी पिलग्रिम सेंटर कॉम्प्लेक्सेज है, अब इन कॉम्प्लेक्स में उन्होंने कहा तीन चीजें होती है। एक, इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वो हो गई सेक्रेड ज्योग्राफी। एक, इसको यहां पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, पंडित हो, पुरोहित हो, तो इनको नाम दिया सेक्रेड स्पेशलिस्ट। और तीसरी, यहां पे जो अनुष्ठान की क्रियाएं होती है उसको बोला सेक्रेड परफॉर्मेंसेज। ये तीनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनता है, ये है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे तीन चीजें आई, सेक्रेड ज्योग्राफी, सेक्रेड स्पेशलिस्ट, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। उसी को उठा के उसने तीन वर्ड यहां पे लिए, नेचर, मैन, स्पिरिट। नेचर ज्योग्राफी, मैन स्पेशलिस्ट और स्पिरिट क्या है? परफॉर्मेंसेस। बस ये तीन चीज घुमानी। क्लियर? तो अब अब इसको जैसे हमने कहा, नाउ इससे आगे लिखो, सेक्रेड परफॉर्मेंस हो गया। अब इसमें लिखो दिस स्टडी based on ecological aspect of culture, where
culture is defined as man made part of man-made part of, yes, environment. It means a culture is specific for a specific environment. ये बात हम उसको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, राइट? इसका आगे क्या हो जाएगा? चेंजिंग एनवायरनमेंट मींस चेंज इन कल्चर नहीं, डिग्रेडेशन ऑफ कल्चर, डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर. डायनासोर एक स्पेसिफिक के लिए एनवायरनमेंट में थे, एनवायरनमेंट बढ़ने से डायनासोर में क्या हुआ? चेंज थोड़ी हुआ, एक्सटिंक्ट हो गए. चेंज इन एनवायरनमेंट मींस बिकॉज योर कल्चर इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. इफ एनवायरनमेंट चेंज, कल्चर विल एक्सटिंक्ट. क्यों? क्योंकि वो तो वहीं के लिए बनी हुई है. अब ये कल्चर तभी सरवाइव कर सकती है जब इसको वो सेम इन्वायरमेंट मिले जो वहां पे था. तो डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन प्लांट में सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जब आप किसी ट्राइबल को डिस्प्लेस करते हो तो रिहैब करने के लिए क्या वो सेम इन्वायरमेंट है, क्लियर, जहां पर उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस लगातार चलती है. तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया. तो यहां पे हो गया कल्चर का पार्ट, राइट. तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स आ गया. हम दो चीजों की बात करते हैं. सेक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या है? व्हाट इज सेक्रेड कॉम्प्लेक्स? बेस्ड ऑन विच द थॉट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इज बेस्ड ऑन विच थॉट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? कौन सा थॉट है ये? कल्चर मेटेरियलिज्म, आर्टिफैक्ट्स कल्चर, व्हाई इट इज सेक्रेड बिकॉज इट इज इकोनॉमिक, या फिर सिंबलिज्म? कल्चर मेटेरियलिज्म मार्विन हैरिस बोलता है. वो क्या बोलता है? किसी चीज के सेक्रेड होने के पीछे उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, राइट. ये इकोनॉमिक से थोड़े परे है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, राइट. तो इनकी पहली बात सिंबोलिज्म, मैंने कल बोला था सिंबोलिज्म. और दूसरा ये किस पे बेस्ड है? सिंबोलिज्म प्लस इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसको हमने किसके अंदर डाला हुआ है? नियो इवोल्यूशनरीज, जूलियन स्टीवार्ड. तो ये जो स्टडी है विद्यार्थी की, ये दो चीजों के साथ चल रही है. एक तरफ सिंबोलिज्म चल रहा है और एक तरफ क्या चल रहा है? हाँ, तीसरा क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? अकल्चरेशन. अकल्चरेशन यानी डिफ्यूजनिज्म, सिंबोलिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट. जब सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बारी आएगी तो क्या क्या चलेगा? एक चलेगा डिफ्यूजनिज्म, एक चलेगा सिंबोलिज्म. जब नेचर में स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की बारी आएगी तो क्या क्या चलेगा? सिंबोलिज्म. ये तीन पार्ट आएंगे, राइट. या सिंबोलिज्म कम है और इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और न्यूओल्सनरी यानी कि क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डिफ्यूजनिज्म. हमें मेन इसको एस्पेक्ट लेना है. सिंबोलिज्म तो हमने सेकेंड कॉम्प्लेक्स से ले लिया और यहां पे साथ में लेना नीवो इवोल्यूशनरी, जिसको हटा के लिखना है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. So this study is basically inspired by the Julian Stewart concept of ecological anthropology plus second complex के बेस में चल रहा है. ये दोनों चीजें यहां पे, ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें समझना है. मैं चीजें तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? सेकेंड कॉम्प्लेक्स यानी सिंबल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वेयर ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, सेक्रेड, सेक्युलर सब एक साथ आ गए हैं. ये इंडिया ही तो है. सो सेकेंड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट दी सिंबल, सिंबोलिज्म है. Nature man spirit complex is actually the environmental aspect where culture is based on environment. If environment change, culture will destroyed or extincted or distorted. अब देखो, अब हम ये बात कही है विद्यार्थी ने, एक कल्चर का एक, तो हमको बेस मिल गया, इंट्रोडक्शन, मालेर, बेस. अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स पे, राइट. अब लिखो तीनों, नेचर, मैन, स्पिरिट.
एनएमएस कॉम्प्लेक्स, बड़ा मत लिखो, एनएमएस कॉम्प्लेक्स, एनएमएस कॉम्प्लेक्स, इसका नाम एनएमएस कॉम्प्लेक्स है। लाइफ ऑफ अ मालेर, द लाइफ ऑफ मालेर the life of Malay revolves around environment, surrounding environment, and belief in supernatural spirits. Malays are dependent on nature in terms of shifting cultivation, खल्लू खेती। Right? Whereas their religious belief based on metaphysical and spiritual basis. मेटाफिजिकल मतलब अधिभौतिक, राइट, एंड स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तो नेचर जो है ये उनके लिए एक मेटेरियलिस्टिक है, राइट, और स्पिरिट जो है ये सुपरनेचुरल है, ये मेटाफिजिकल है, ये स्पिरिचुअल है। तो एक तरफ इनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ, एक तरफ इनकी नॉन मेटेरियलिस्टिक लाइफ, राइट। सो Malay's society denoted as men in NMS complex is an organization of family, kinship, marriage, etc. In this way, a Malay is dependent on nature as well as supernatural being. Right? Nature satisfied his materialistic need, right? Whereas spirits
are of two type. Benevolent and malevolent. Benevolent and malevolent. Benevolent spirits protects Maler from calamities, disease, and from other malevolent spirits. Where malevolent spirits are responsible for all those things, calamities, disaster, illness, decreasing fertility of field, right? Maler worship benevolent spirits right? Spirits through rituals and try to please them. And they believe that these spirits bracket करना ancestral, these spirits protects them in their inhabitant area. So the whole life of Maler is based on NMS complex. Maler do not like strangers or outsiders. To them, outsiders know only one aspect of their complex. So they become threat to the complex. राइट ना अब देखो जैसे उन्होंने कहा हमने कहा कि नेचर मैन स्पिरिट्स तीनों हैं क्लियर एज वी हैव डिस्कस तीन पार्ट हमने किए
नेचर मीन्स इकोनॉमी, राइट, इसके थ्रू खल्लू खेती। मैन मीन्स सोसाइटी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, राइट। स्पिरिट मीन्स the religious belief in terms of spirits which are malevolent and benevolent. So every Malay respects and have a great faith on this. And how they interact? A man is there to make optimum utilization of nature, and nature provides product. Why? Due to the blessings of spirit. So agriculture is not possible without the blessing of their ancestor or spirits. So spirits are necessary for the resources, right? It means it is there to provide resources, and resources provided due to the blessing of this. So a man is totally dependent on this one as well as. So nature is not aloof to the spirit, and spirit is not aloof to the nature. Both are with the man. And this make a complex. And now how they will return? कि whenever a field is there sown or cultivated, उसका एक पार्ट किसको समर्पित होगा? स्पिरिट को। हमारे यहाँ नहीं होता वैसाखी पे? क्या करते हैं? आग जला के उसके अंदर नए धान को डालते हो। दिवाली की पूजा उठाओ जरा, गन्ने ले जाते हो, क्यों? होली की पूजा के टाइम क्या डालते हो? ले जाके नया धान, क्यों? राइट, दैट इज योर थैंकनेस और रिगार्ड टू दैट सुपरनेचुरल, कि आपने हमें दिया, ये हमारा अर्पण। दैट इज द थिंग दैट मेक्स अ ट्रायोलॉजी। तो ये सिर्फ ये हर उसके लिए है विच लिव्स ऑन नेचर, एंड मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर। तो नेचर से जो गिव एंड टेक का ये सिस्टम है, ये इसी रूप में है कि आपने नेचर से लिया और बाद में धन्यवाद करके दिया। यज्ञ क्या था? इफ यू टॉक अबाउट द यजना इन ऋग्वेदिक पीरियड, राइट, वो लोग क्या करते थे? बलि में क्या करते थे? प्रे करते थे। प्रे में क्या करते थे? वो अपना धान, थोड़ा सा जो उनके घर में धान या पशु दूध का, घी का कुछ भी हो रहा है, उसको उसमें अंदर, हे प्रभु रक्षा करना, ये हमारी तरफ से जो हमारे पास है, बस आप इतना करना कि हमको रई दे, और हम क्या करेंगे? उस रई का एक पार्ट, सेम कॉम्प्लेक्स है, सेम ट्राइब है। सो वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी मच रिलेवेंट इन द स्टडी ऑफ ट्राइब, because it provide an accurate picture of a tribe, their life, their thought, their nature, and their attachment to the surrounding environment. So why this study is quite important in terms of the study of tribe in their own. Yes, and this is called as, this is also important in the field work, right? Studies in their own habitat. तो ये वही था, राइट? इसीलिए विद्यार्थी इज क्वाइट renowned anthropologist in India. अब इसकी बात करें, so this is a complex, complete complex of nature, man and study. Now the relevancy of NMS complex. Relevancy of NMS complex. How economy, society and religion are coordinate to each other, interdependence to each other. इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। पहली बात रिलेवेंसी क्या है कि how economy, society, culture and belief are interdependence and coordinated to each other. ये NMS complex बताता है, right? Interdependence and coordination between all the aspect of human life, social, economical, cultural, religious. So first of all, this is man, the social aspect, cultural aspect, economical aspect,
religious aspect, right? These all aspects are represented by this second. It is totally based on optimum utilization, the theory of optimum utilization of natural resources, and which is the demand of this particular time, not maximum, not exploratory. What we need? Optimum utilization. थर्ड लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ. पहला ये हो गया, राइट? सेकंड हो गया ये बहुत याद रहेंगे तुमको. मैं क्यों तुम्हें डायग्राम, ये याद रहेगा, लैंग्वेज बन जाएगा. बट दिस रिक्वायर फॉर द लैंग्वेज, राइट? फर्स्ट it provides a holistic, right? It provides a holistic picture of a tribe, how society, culture, economy, religion, everything is interdependent and coordinated to each other. Second, it shows the optimum utilization of resources, right? Because to Mahler, these spirits are responsible for the fertility. The same the totemism by the James Fraser. अरुण ट्राइब कहाँ की है? वेरी गुड. एक दो तीन चार, राइट? और जो वंशी कहाँ की है? बुशमैन का ही एक पार्ट है जो वंश. हाँ, बुशमैन का ही है, ओरल बुशमैन है, कोई जो वंशी है, राइट? हारी डेजर्ट है प्योर. तीन चीज का उदाहरण है. बैंड फॉर्म हो गया. दूसरा, अगर बैंड होता है तो दूसरा एग्जांपल क्या दोगे? अगर मैं कहूं बैंड तो दूसरा माइंड में क्या आएगा? ऑफ कोर्स दी, चलो मान लिया एक्सचेंज कैसे होगा? पहला ये हो गया. दूसरा क्या हो गया इनके अंदर? अगर मैं बोलता हूं कि एक बैंड है, तो बैंड कौन सा वर्ड है? सोशल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल है? बैंड एक सोशल वर्ड है या पॉलिटिकल वर्ड है? वेरी गुड. तो किस तरह का एग्जांपल है ये? हेडलेस सोसाइटी सिस्टम और राइट, हेडलेस सोसाइटीज, सिफिलिस. एकदम दिमाग में लाओ. अगर बैंड है, 15-20 लोग हैं, राइट? तो तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? किंडर्ड, राइट? कभी कभी मिलेंगे, राइट? कभी कभी मिलेंगे, रोज मिल नहीं सकते. क्लियर? और किसी के? हाँ, एक्सचेंज सिस्टम भी किस रूप में आएगा एक्सचेंज इनका? ये तो भागते रहते हैं, है क्या एक्सचेंज करने के लिए? एक्सचेंज उनमें होता है जो स्टेबल ट्राइब्स होती है. ये भागते हुए किसी को क्या देंगे? लाइफ बिल्कुल सिंपल है इनकी, वेरी मच सिंपल लाइफ, वेरी मच सिंपल लाइफ. कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जो मिला खा लिया, जो मिला रह लिए. फॉर्मलिस्ट इकोनॉमी, हंटिंग फूड गैदरर्स. इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कौन से लोग होंगे? ये हंटिंग एंड फूड गैदरर्स. क्लियर बात? सोशल एस्पेक्ट में कैसा होगा? अ सिंपल बैंड सिस्टम. थर्ड, अगर हम बात करें पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कैसे होंगे? हेडलेस सोसाइटी, राइट? बस यही ध्यान रखना. बैंड से जैसे ऊपर जाते हो तो अगला कौन आता है? ट्राइब. ट्राइब आती क्या बोलोगे? स्टेबल, गुड इन नंबर्स, सेगमेंटेड. क्या वर्ड लाए? बट इगलिटेरियन. सेगमेंटेड बट, अब इनके अंदर तुम सिस्टम लाओगे, लीनिएज, क्लान, क्लून, जब 11 वगैरह. उससे ऊपर जाए तो चीफ्टेंस. तो यहां से क्या शुरू हो गई है? हायरार्की, स्ट्रैटिफिकेशन, एंड उसके बाद क्या आ गया? स्टेट सोसाइटी. अब होल सिस्टम एक से एक कनेक्ट कर दो. एक एग्जांपल 4 जगह काम आ जाएगा. एक ट्राइब पकड़ ली, नुएर, रह ली ना. अब ट्राइब है, वो क्या है? ट्राइब है.
हमें ट्राइब का सिस्टम समझ में आ गया। क्वाकेतुल हैदा चीफ्टन, क्या हो रहा है? रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो क्या कर दो, एक पॉइंट को उठा के सीधा करो। क्लियर नाउ? सो एनिमस कॉम्प्लेक्स, मैन, सोशल, सेकंड, थर्ड this complex is very much relevant in displacement and rehabilitation policy. टू विद्यार्थी rehabilitation of tribe, the model of rehabilitation for tribe should be based on NMS complex, not based on compensatory monetary aspect. In this term, in this way, in tribal displacement and rehab policy, anthropologists should be recruited राइट। नीचे लिखो कोट के फॉर्म में स्टार लगा के लिखो, ट्राइबल प्रॉब्लम्स should be solved with tribal mind. इस पूरे के नीचे ये लास्ट कोट डाल देना, ये तुम्हारे पूरी एनएमएस कॉम्प्लेक्स को क्लियर कर दे। हियर वी हैव द एनएमएस कॉम्प्लेक्स, राइट। ये हमारा एनएमएस कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, इंटरप्ले ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। इंटरप्ले ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। अब मालूम है कंसेप्ट किसने दिया था आपको? दिया है द कंसेप्ट, द ओरिजिनल कंसेप्ट is based on Robert Redfield's कौन सा? रॉबर्ट रेडफील्ड्स फोक एंड अर्बन कंटिन्यूम। रख लो, फोक कल्चर ऑफ यूकाटान।
folk culture of Yucatan. On the basis of this concept, McKim Marriott gave his concept, gave her concept based on interplay of great tradition and little tradition. To Redfield, great tradition represents mainstream urban society, whereas little tradition represented by village and folk society. Right? Great tradition, little tradition, great tradition and little tradition both are on extreme ends but have a continuum in terms of transmission of elements to each other. राइट? अब हम थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में करते हैं. जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, क्या मैं वापस बताऊं क्या उसने बताया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने? फोक, विलेज, टाउन एंड सिटी. विलेज एंड फोक पास में है, टाउन एंड सिटी पास में है. राइट? और उसने फिर 4 वर्ड दिए थे. कौन कौन से थे? मैंने 4 वर्ड बताए थे तुम्हें. मैदिस, डिस्टास, कैम्फोन एंड टस्की. राइट? मैदिस, डिस्तान, कैम्फोन एंड टस्की. मैदिस कौन है? मैदिस है फोक सोसाइटी, डिस्तान विलेज, कैम्फोन टाउन एंड टस्की सिटी और अर्बन. राइट? जिसमें से मैडिस और टस्की एक्सट्रीम एंड पे है और बीच में कौन है? डिस्तास और कैम्फोन. ये 4 हो गए, कंटिन्यूटी बन रही है. नाउ अब हम एक अगर सिंपल बात करें, ग्रेट ट्रेडिशंस, अब लिखो ग्रेट ट्रेडिशंस, ग्रेट ट्रेडिशंस belong to classical text and literature, classical text and literature. ब्रैकेट में कर लो. इन हिंदू सोसाइटी mythological texts.
राइट। हमारा मैथोलॉजिक टेक्स्ट है ना, दे आर द क्लासिकल टेक्स्ट एंड क्लासिकल लिटरेचर, ग्रेट ट्रेडिशन जो है, राइट। दीज ट्रेडिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड and transmitted through texts from generation to generation. Right? ग्रेट एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लासिकल होंगे, राइट। दे बिलोंग टू literate and intellectual group, right, and represents a class of people जैसे मैं एक बात तुमको बोल रहा हूँ, इफ वी टॉक अबाउट द संस्कृताइजेशन ना, व्हाई संस्कृताइजेशन बिकेम पॉपुलर अराउंड आफ्टर द मिडिवल पीरियड, क्यों इतना हो, राइट। सो बिकॉज एक बहुत बड़ी बात हुई थी, दैट द रिचुअल्स बिकेम फ्री फ्रॉम मंत्राज। आपको कर्म कांडों के लिए अब मंत्रों की जरूरत नहीं ज्यादा। उससे क्या हुआ, नाउ यू डू नॉट नीड अ स्पेशलिस्ट ग्रुप टू परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स, राइट। इसकी वजह से वो ऑल अदर कास्ट विच वर नॉट सो लिटरेट अबाउट द वैदिक टेक्स्ट्स, राइट, राइट। Now, Brahmanism made available to those castes also. Otherwise, बिना मंत्रोच्चार के ब्राह्मण बनना नामुमकिन था, राइट। रिचुअल्स नामुमकिन थे। अब आप कर सकते हो। आपने क्या किया, अपने मंत्रों के लिए छोटी सी किताब रख ली, चलो सुंदरकांड के पाठ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अपनी घर में भागवत कथा कर लेते हैं। क्या भागवत कथा के लिए किसी मंत्रोच्चार की जरूरत है? तो अब आप एक कर्मकांडी पंडित से एक व्यासपीठ के पंडित बन गए। हम जी कथा पाठ करते हैं, तो आप कथा पाठक बन गए। आपने अपने नाम के पीछे लगा लिया व्यास, लगा लिया। तो व्यास जी का क्या काम है? व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा का। तो अब ब्राह्मण्स में इतनी कैटेगरी आ गई कि कोई ब्राह्मण पहले ब्राह्मण क्या होते थे? जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदाचार कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? हर तरह के ब्राह्मण। तो नाउ इट इज इजियर टू एसिमुलेट इन द ब्राह्मणिकल सिस्टम। एक बड़ा सिस्टम आया था। सो दिस ग्रेट ट्रेडिशन एक्चुअली बिलोंग्स टू द ग्रेट हिंदू सोसाइटी, right? Great Hindu society, a society in terms of a specific complex culture. Now, these traditions are complex in nature. These traditions are complex in nature. And very specialized in terms of language and script. Right? If we talk about now Vedanta, so in terms of language script ये बात होगी। Now अब हम क्या, great tradition क्या है? Great tradition actually represents the orthodoxy Hindu society, classical literature, classical language, classical rituals, very specialist, a specific language, literature, everything, and learned, shared, and innovated in terms of texts,
राइट, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट हो रहा है। नाउ द लिटिल ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, these traditions, these traditions represent village and folk society. These traditions are not present in classical text or literature. The presence of these traditions can be seen in folklores, right, and regional folk art. फोकलोर्स हो गया अपना, क्या कहते हैं, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कहानियां, इनमें ये मिल जाएंगे, राइट। तो फोकलोर, फोक म्यूजिक, राइट, फोक सॉन्ग्स, तो फोकलोर, फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स, राइट, एवरीवेयर यू कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स। जैसे हमारे यहाँ जितने भी लोकल देवता है, विलेज डाइटीज है, राइट, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर? अरे फोक से याद आ गया, क्या याद है, माखन जाकर गोवा पे काम लिख ले। अच्छी बात कही आपने, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स में लिखोगे माखन झाजी, कहाँ मिले आपको? सेक्रेड कॉम्प्लेक्स में मिले थे ना, पलटो पन्ना। हाँ हाँ, गोवा में काम किया इन्होंने। गए किसी काम से थे, बता कोई काम दिया, अब तुम जानते घर पे आके क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना। माखन झा, माखन झा worked on Goa in terms of local, complex, and discussed the interaction of sacred and secular elements। उनका एक बंदा, एक जैसे लाइक ए पर्सन गोवा जा रहा है, किसी और मूड से जा रहा है, वहां जाके चर्च देखता है, वहाँ के लोकल डाइटी, जैसे गोवा में एक वैताल होते हैं, लाइक इफ यू गो टू द गोवा विलेजेस ऑफ गोवा, तो इन ईच विलेजेस अ लोकल डाइटी वुड बी देयर, और उनका नाम होगा वैताल। जैसे हमने वैताल पढ़ा, विक्रम वैताला, सो वैताल है, विक्रम वैताल में वैताल अलग है, इनका वैताल अलग है। सो दैट वैताल इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर ऑफ द होल विलेज, राइट। और उस वैताल को ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसको गोवन शराब, अपनी तरफ जो भी लोकल शराब होती है वो उसको चढ़ाते हैं। उसके लिए एक स्लीपर रखते हैं हर महीने, एक चप्पल, कपड़े और शराब, और जो भी माचिस वगैरह सब रखते हैं, और देखते हैं कि उनकी चप्पलें घिसी भी मिलती है हर 2 महीने। टू दोज पीपल के ये लोग पूरी रात जो है वो गांव का चक्कर लगाते रहते हैं, और कोई भी अगर रात को रास्ता भूल जाए या भटक जाए तो उसको लाके गांव में छोड़ देते हैं, और इसी वजह से उनकी चप्पलें घिस जाती है और हर 2 महीने बाद नई चढ़ाई जाती, राइट, बिलीफ। सो गोवा में उन्होंने बताया कि हाउ द सेक्युलर ट्रेंड,
अब गोवा में जो जा रहा है वही लोग है, तो मालूम है अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, चर्च वाले। हाउ सेक्युलर ट्रेंड इंटरैक्ट्स विद द सेक्रेड ट्रेंड्स, ये गोवा में बताया जहां साहब ने जाके वहां पे तीन लगा के हर गांव में एक अपना वैताल होता है। हमारे यहाँ भी तो हर गांव में एक गांव का देवता होता है, लोक देवता होते हैं, भूमिया जी होते हैं। हर गांव में भूमिया जी है, राइट, और भूमिया जी को पूजने वाले भोपे हैं, राइट। हर गांव में लोकल देवी है। अब जैसे लोकल देवी के नाम तो बाया जी, हर बेड़ के पेड़ के नीचे बाया जी है ना। अब एक्चुअली बाया जी कौन है, ये अगर तुम ग्रेट ट्रेडिशन में जाओ तो ये बाया जी जो है वो माता के रूप है, माता की गणे हैं। बाया और भैरू, 52 भैरू और 64 जोगन, ये सब कौन है, ये शिव और पार्वती के लोकल अवतार है, राइट। अब इसको आपने वहां पे कैसे जोड़ा भैरव को, कि भैरव कैसे जोड़ा कि जब सती ने अपने को अपने पिता के कुंड में बहन के सुसाइड कर लिया, तो जब शिव वहां पहुंचे तो भयंकर गुस्से में थे, उन्होंने देख के, तो उन्होंने अपने शरीर का एक बाल फेंका, उस बाल से पैदा हुआ भैरव। उस भैरव ने सबको मार दिया, प्रजापति का गर्दन धड़ से अलग कर दिया, और भयंकर वो, क्योंकि वो युद्ध के लिए पैदा हुआ। दूसरा भैरव पैदा हुआ जब माता ने युद्ध किया किसके साथ में, महिषासुर के साथ में। माता ने युद्ध किया किसके साथ में, शुंभ निशुंभ के साथ में। जब शुंभ निशुंभ का युद्ध हुआ तो माता में से उसकी गणे निकली, सब पूरा भर गया, तो वहां पर भैरव नाच रहा था और जोग ने डांस कर रही थी, डाकिन ने। ये सब कहते हैं उनके युद्ध के रूप है, और बाद में ये लोकल डाइटीज हो गए हैं। हर गांव में आपको भैरव और कहते हैं हनुमान जी, भैरव जी और बायन जी पक्का मिलेंगे। तो अब ये लोकल फॉर्म में ये ग्रेट और लेटेस्ट ट्रेडिशन का इंटरेक्शन है कि जो बड़े देवता थे वो आपको गांव में। रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु का। अगर किसी ने रामदेव का मूवी देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि उनके जो पिताजी थे अजमाल जी, बहुत साल उनकी सेवा करते हैं, तो लोग उन पे ताना कसते हैं कि क्या सेवा कर रहा है, आज तक तो पुत्र मिला नहीं तेरे को। तो वो लड्डू जो उनके हाथ में था, तो वो गुस्से में आके लड्डू मारते हैं विष्णु भगवान पर कि तेरी क्या सेवा करनी। तो दूसरे दिन बता दें कि भगवान ऊपर बैठे हुए, सर पे पट्टी बंधी हुई है। तो माता ने कहा ये क्या हुआ, कि भक्त का प्रसाद है। फिर वो नीचे आता, कहते तूने मुझे प्रसाद दिया, ले मैं तुझे प्रसाद, मैं तेरे घर में अवतार लेके आऊंगा। तो इन दिस टर्म हमने एक लोकल डाइटी को, एक लिटिल ट्रेडिशन को ग्रेट के साथ कनेक्ट किया। गोगा मेडी, गोगा जी किसके अवतार, विष्णु के अवतार, राइट। तो विष्णु के अवतारों का लोकलाइजेशन किस फॉर्म में हुआ, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, मांगलिया मेहा, ये सब कौन है, ये सब लोकल डाइट्स है जिनको बाद में हमने ग्रेट ट्रेडिशन के साथ में कनेक्ट कर दिया। सो इंडिया में ये जो फोक और इन दोनों की परंपरा है ये शुरू से चली आ रही है। सो इट इज कंप्लीटली अबाउट दैट, राइट। तो इसमें लिखा, हमने क्या लिखा इसमें, अभी गोवा को छोड़ दो, गोवा से बाहर आओ, होगी बहुत तेरी फैनी मैनी। लिटिल ट्रेडिशंस आर सिंपलिस्टिक इन नेचर and transmitted by oral tradition. अब आपने देवनारायण जी का नाम तो सुना ही होगा, जो गुर्जरों के अपने अधिदेवता है बाबू जी। तो ये लोगों का जो भी गायन होता है ना, वो फड़ पे होता है। फड़ क्या होता है, एक बड़ा सा कपड़ा होता है काफी मीटर लंबा, उस पे क्या अलग अलग पिक्चर्स बनी होती, युद्ध में जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, रात के समय में पीछे लाइट लगा के वो फड़ खोल देते हैं, राइट। अब उस फड़ में एक सीन आता रहता है और ये पीछे से उसको गाते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़। तो इनका जो ट्रांसमिशन है सब ओरल फॉर्म में आ रहा है, वो वही है, बट जो गाने वाले हैं वो 1 by 1 हर में आगे से आगे इसको। सो इन फोक, इन लिटिल ट्रेडिशन, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन हैपेंस थ्रू ओरल। जैसे रामदेव जी के गीत गा रहे हैं आज तक, उनके ऊपर ग्रंथ तो आपने कोई देखा नहीं, गीत गाए जा रहे हैं, उन गीतों में वो प्रसिद्ध हो गए। तेजा जी के गीत गाए जा रहे हैं, तेजा जी, हड़बू जी, सबके गीत गाए जा रहे हैं। तो ये लिटिल ट्रेडिशन इन गीतों से चलता है, राइट। एंड डाइटीज आर रीजनल, डाइटीज इन लिटिल ट्रेडिशंस
आर रीजनल, राइट? सो क्लासिकल लिटरेचर नहीं है, क्लासिकल टेक्स्ट नहीं है, ओरल है, सिंपल है, रीजनल है, राइट? फोकलोर्स में है, फोक सॉन्ग्स में है, फोक म्यूजिक में है, फोक आर्ट में है, ये लिटिल ट्रेडिशन, राइट? लिटिल बिलीफ है, मानने वाले लोग भी सिंपल है, नॉट बाउंडेड बाय ग्रेट रिचुअल्स। ग्रेट ट्रेडिशन में क्या होता है? ग्रेट रिचुअल्स। यहां पर क्या है? नो रिचुअल्स एट ऑल, कोई रिचुअल कर्मकांड नहीं है। आप जाओ, भोग लगाओ, बात खत्म हो गई। कोई आपको पुरोहित स्वामी नहीं चाहिए, आप जाइए, भोग लगाइए। क्लियर? हमारे खाटू श्याम जी भी देखो आप, लिटिल और ग्रेट के बीच में सबसे बड़े हैं। खाटू श्याम जी क्या हुआ? ग्रेट ट्रेडिशन का क्या हो गया? लिटिल ट्रेडिशन। और लिटिल ट्रेडिशन से, राइट, जब आप इनको बर्बरीक से और कृष्ण भगवान से जोड़ते हैं तो यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है, और जब वहां से यहां लेके आते हैं तो पैरोकलाइजेशन। तो यही सिस्टम है, बहुत बड़ा इनका एग्जाम्पल है, पूरे भारत में फेमस है अब तो खाटू श्याम जी, राइट? और खाटू छोटा सा गांव है और वहां के श्याम जी है, देखो। तो ये हुआ अपना ग्रीटिन ट्रेडिशन। नाउ मैकिम मैरियट वर्कड ऑन किशनगढ़ी, a village near Govardhan, and gave a detailed description about continuity or transmission of elements between great tradition and little tradition in terms of universalization and parochialization. Now, remember one thing. If we talk about the interplay, so interplay will be defined as universalization and how they both are connected or continuum to each. And continuum word is given by the Robert Redfield. Continuum. By the tribal caste continuum, folk urban continuum, ट्राइबल कास्ट को तो उठा के ले लिया, फोक अर्बन को तो 5 हमने कंसेप्ट पढ़े सिर्फ रॉबर्ट रेडफील्ड पर ही। कौन कौन से? ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, राइट? और फाइनली यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैराकलाइजेशन। इन सब के पीछे जो बंदा खड़ा है ना, दैट इज रॉबर्ट। क्लियर? जस्ट टू शो इंटरैक्शन बिटवीन थिंग्स। नेचर मैन स्पिरिट क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन नेचर एंड स्पिरिट एंड मैन, how society interacts with the surrounding environment as well as the supernatural things. यही तो ना, how they interact to each other and make a complex. Second complex means how great tradition, little tradition interact to each other. Clear? This is called the second complex. How tribal elements diffuse into the caste system and how high caste acculture the tribe thing. तो ट्राइब कास्ट कंटिन्यू, ये उसमें आ जाता है। तो अब इसमें हमने क्या लिखा? नाउ टू मैरियट great tradition and little tradition are always in continuum.
the elements of each other are present on both ends. The transmission of elements of little tradition to great tradition or in other words, when a folk belief gets the space in classical literature, it is called as universalization. So universalization is associated with great tradition. So universalization is associated with great tradition. In contra, when element of great tradition becomes a part of little tradition, or in other words, localization of classical elements is termed as parochialization. Parochialization is associated with little tradition. Little tradition, great tradition, elements from little to towards great is called as universalization. Elements from great to little is called as parochialization. Right? So this is a cycle between little tradition and great. Now, Marriott's concept was based on her study of little tradition of Kishangadi. Where on the basis of where के बाद कॉमा आएगी, where on the basis of
Soroti puja, Govardhan puja, Govardhan worship, and Navratri puja, and सलूनों का पर्व. Right? Right? See, on the basis of study these studies on the basis of Sorti puja, right? She proved her concept. अब नीचे पहला लिखो. Navratri puja is a part of great tradition right, great tradition, but नहीं, where but kato, where goddess Durga and her various forms are worshipped, but worship of local deities during Navratra represents parochialization of great traditional elements. The same aspect is associated with the local worship of Govardhan which is parochialization of great tradition associated with Lord Krishna. So we have taken two examples for in terms of parochialization. अब लिखो सी, worship of goddess Lakshmi on the occasion of Deepavali, on the auspicious day of Deepavali, which is celebrated by the crores of Hindus, right? किसके लिए? In terms of the return of Lord Rama to the Ayodhya. Why? Because the day was the day of Amasya. So to lighten the whole path.
क्या लिखा हमने? is a classical example of universalization of little tradition in terms of worship of Sorothi goddess, Sorothi deity in little tradition of Kisangadi. ये अपना जो गोवर्धन है ना, मथुरा के पास में, गोवर्धन से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है किशनगढ़ी। वो किशनगढ़ है अजमेर के पास, वो किशनगढ़ी है। हाँ, वो गढ़ी, गढ़ी मतलब छोटा, गढ़ मतलब बड़ा, राइट? जैसे डूंगर और डूंगरी, डूंगर ऊपर डूंगरी। आगे मत बोले, गाना है पूरा। फिर सुरदा बीकानेरी आदमी मदन जेरी का तर्जा का ठाकुर नहीं। राइट, सो सेकंड लिखो, राइट? ये हो गया अपना सलूनों का पर्व, सलूनों का पर्व, which is a regional festival in which sisters tie a holy thread on the wrist of her brothers became universalized and celebrated as the Raksha Bandhan in great tradition. राइट? तो 30 तारीख को क्या है? सलूनों का पर्व। सलूनों का पर्व है तो या तो किशनगढ़ी जाइए। सो एक्चुअली इट इज जस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट? और ये कहां से शुरू हुआ था? नहीं, तो इसको हम ग्रेट ट्रेडिशन में किस फॉर्म में लाए थे? पहले राखी किसने किसको बांधी थी? बुद्धिहीन तनु जान के सुन लो कुमार। यही प्रार्थना करो सुबह उठते ही, बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु हलेश कुमार, हरेहु कलेश विकार। तो भाई ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर का आपसे पूछ दे, सब माता देवी ने मान दी थी पहले, विष्णु जी को पहली राखी देवी के रूप में एक ही आती है, पार्वती। देवी के रूप में एक ही, जितनी भी देवी है वो सब शक्ति का रूप है, राइट? और वो सब शक्तियां जो है वो भगवान की ही है, जो भगवान में से निकलती है। राइट, वी से दैट ऑल द पावर्स comes out from the male and become female, and female never returns that power and become powerful, and man powerless. So marriage is a connection between a powerful and powerless personality, and power always support to women, as constitution does. The constitution has power, and like dissolves like
right? So in terms we can say that constitution is always right because it always favors the powerful people. It is not for the powerless people. We call this democracy. It is not democracy, autocracy. So आप गौर करके देखो when we talk about the दुर्गा सप्तशती कि जब देवताओं को मार भगाया, ठीक है, किसने? सुमन ने, तो सब गए देवता, बड़ा क्रोध हुआ, तो उनमें से हर एक के अंदर से एक शक्ति निकली और वो वैसे रूप में थी और वो बन के एक देवी बन गई. सो ऑल ये कहता है कि ऑल डाइटीज और गॉड एक्चुअली दे ऑल आर फॉर्म्ड बाय द शक्ति. शक्ति मतलब शक्ति ही मेन थी, उससे शिव बना. अब ये उल्टा कैसे कहते हैं शिव से शक्ति बना, कहते नहीं शक्ति से शिव बना. यही है कि बीज से पेड़ बना है, पेड़ से बीज बना, राइट? ये कंसेप्ट वही है कि सीड के पेड़ के बीज, बिना बीज के सीड नहीं हो सकता, बिना सीड के बीज नहीं हो सकता. बात हो, अब कोई साइंस पढ़ा जाए पार्थिनोजेनेसिस, अपनी खोपड़ी लगा ले तो अलग बात है कि जी पार्थिनोजेनेसिस हुआ होगा, पहले हर्मेफ्रोडाइट रहा होगा, गेंदे का फूल होता है ना, मेल से एस्ट्रल दोनों एक में ही होते हैं, वो अलग बात है. सो now if someone ask about the relevancy of great tradition, we can say that in Indian, लिखो, in Indian context, both tradition are indifferent part of Indian culture. And the wholeness of culture is represented by continuity and interaction between these traditions. Right? Continuity and interaction. Right? ये हमारा हो गया लिटिल ट्रेडिशन, गेट ट्रेडिशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकिलाइजेशन. So these topics is now end. आज का क्लास कंप्लीट. थैंक यू.